Assalamu alaikum. Um, just to set things in perspective, data-wise, before we start answering or trying to dissect the question, HEC का published data है where there is a decrease in higher education enrollment last year about 13% और इस साल तकरीबन 20% और कम होगा. We see a similar decline in even college level education. तो जो challenges बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, they are because of two narratives. एक तो ये है कि after the student completes his degree, one of the major objectives of getting that degree is to get a good job. And when there is an economic downturn, या stagnation, there are no new factories coming up, no new jobs coming up, तो that sort of triggers the effect to the student कि शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है, at least short term के अंदर. दूसरी चीज़ एक बहुत ज़्यादा जो that we see on social media is कि डिग्री डजेंट मैटर, आप ये स्किल ले लो, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कर लो, एक छोटी सी चीज़ कर लो, and that will start earning you some dollars, and it does start earning you some dollars. But as AI systems become more and more popular and more sort of abundant, ये जो छोटे छोटे काम आप करके ले सकते थे वो ऑटोमेट होते जा रहे हैं. So once, let's say, a graphic designer was getting $50 for one small thing for a 3-day job, that no longer fetches you $50. Either it's gone down to $10 or eventually it will disappear जब सब कुछ आपका AI ही करके देगा. So somebody who has a degree learns lifelong learning के how to adapt. आपको 4 साल की डिग्री में कभी एक तरह की चीज़ पढ़ाई जाती है, जनरल एजुकेशन की, कभी लीडरशिप की, कभी एंटरप्रेन्योरशिप की, कभी टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, एंड एवरी सेमेस्टर यू अडेप्ट टू समथिंग न्यू. सो बट a small skill, once you that finishes, you are again starting from zero and you have absolutely no idea what next skill you want to learn. तो इसलिए ये इस perspective के अंदर once we see the challenges, how do we set up a narrative that actually tells our kids what university education is about, what would you gain from a university education, how would you plan your future where you're not afraid of something going, I mean, it's constantly changing, so you are constantly readapting and learning new skills throughout the way, and your future is secure. So we will have to sort of develop this narrative, क्योंकि social media पे skills का narrative बेतहाशा आपको नज़र आएगा, without naming anything, but nobody from the university side actually tells you कि university के 4 साल या 5 साल, depending on कौन सी degree आप कर रहे हैं, professional degree, what does it give you essentially? It's a lifelong learning process that will never, that will be with you throughout your life, and that will help you adapt and look at new challenges as they come by. So इसमें AI ने बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया, बिकॉज चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं. जो टेक्नोलॉजी की डिफरेंस 10 साल में आता था वो अब 6 महीने में आ रहा है. So you will have to adapt much faster. The universities as such cannot wait for the national curriculum to review their curricula after 4 years. आपको साथ अपना बनाना पड़ेगा, अपना अपडेट करना पड़ेगा, इंक्लूड करने पड़ेंगे ये सारे टूल्स, सो दैट वंस द किड्स गोज इनटू द मार्केट उसके पास वो चीज़ें हों जो उस वक्त चाहिए. एंड थ्रू आउट दैट साइकिल उसके पास ये स्किल भी हो कि कल को उस टूल की जगह जब नया आए तो उसे वो सीख के आगे लेके चले. So that's what is going to happen going forward. Very well put. Anam has said कि डिजिटल डिवाइड के अलावा जो कंटेंट क्रिएशन के अलावा है, हमें एमए पास गार्ड की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ के इंटरव्यूज़ में मसाइल आ रहे हैं. हमारे पास टैलेंट टीचर्स अवेलेबल नहीं है. कमिंग टूवर्ड्स व्हाट डॉक्टर मोहित हैज सेड कि जो जामियात हैं, जो इनका बुनियादी किरदार है, जब आपके पास और कोई बंदा आज तक स्कूल्स पे ब्लेम करने नहीं गया. मैं 5 साल से जो पैनल्स का आया हूँ उनमें हम यूनिवर्सिटीज़ की मिट्टी परीत का है. बट इन ऑल ऑफ दिस universities have to give a competitive ground, growth perspective. So how do you see, जब हम entrepreneurship की बात करते हैं, हम innovation की बात करते हैं, and innovation, radical innovation, not incremental innovation. So how do you see the future? जी, so actually if you look around the world, जिधर भी आप देखेंगे, the basic sort of ground where innovation starts is always a university.
ठीक है, ये वगैरह के आप जितने भी स्टार्टअप देख लें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हैं चाहे टेक्नोलॉजी के बाहर हों, बिकॉज university is a place where you can play around and where there are opportunities to test and check what you are doing might work or not. Example में just let me give you a few examples. Let's say पाकिस्तान में इस वक्त हमने आई डोंट नो कितने साल से आज तक सिर्फ पेप्सी, फैंटा और स्प्राइट पी है, 3 ही मॉडल हैं ड्रिंक्स के, सॉफ्ट ड्रिंक्स के हमारे पास। हमने आज तक कुछ नया कुछ और नहीं बना, क्या हमारा कोई सत्तू शत्तू नहीं चल सकता था मार्केट के अंदर? आपने कही दिया ना मार्केट को। वो बाद में बात करें, बट द पॉइंट इज कि वो जो टेस्टिंग ग्राउंड है वो आई गेस फूड टेक्नोलॉजी के आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से आ जाना चाहिए था। एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ 20,000 किड्स। आपको वो यूनिवर्सिटी शुड बी द फर्स्ट एम्प्लॉय, फर्स्ट क्लाइंट फॉर दीज स्टार्टअप्स कि भाई आपके पास 16,000 20,000 बच्चे, आप वहाँ पे टेस्ट करके पता चल जाएगा टेस्ट सही है कि नहीं है, और आपको बाहर के आ जाएगा। एंड देयर इज़ इनफ सॉर्ट ऑफ मनी देयर कि वो इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है। आप एडमिशन टेस्ट में बच्चे लेने आ रहे हैं, आप उनमें टेस्ट करा लें, टेस्टिंग वहाँ पे हो गई। एक आपने कोई नया इवेंट, इस तरह के इवेंट पे बाहर टेस्टिंग करा ली, आज लगा हुआ है बाहर एक स्टॉल बाय द वे उसका। तो इन सच चीज, तो आई दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। इसी तरह एक मेरे पास आके कहता है कि वी कैन ऑप्टिमाइज योर पावर यूजेज। मेरे पास ऐसे सेंसर्स हैं जो आपके जब नहीं ज़रूरत इन लाइट्स की तो डिम कर देंगे या बंद कर देंगे। तो मेरी यूनिवर्सिटी को भी तो उसका चाहिए ना। आई वॉन्ट माई पावर कट्स एज वेल कि मेरा, तो उसका सबसे अगेन द फर्स्ट क्लाइंट शुड ऑलवेज बी द यूनिवर्सिटी, अगर सब कुछ उसमें से आ रहा है। तो इफ़ वी एनेबल दीज स्टार्टअप्स विद इन द यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको नज़र आएगा बाहर फ़ौरन ये बाहर आते हुए। अगर आप उनका पहले कुछ ऑर्डर्स में हाथ पकड़ लेंगे तो देन दे वोंट बी लुकिंग फॉर कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए टू ग्रो। देन दे विल बी शोइंग टेस्ट केसेस कि ये देखें दिस इज़ व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, दिस इज सक्सेसफुल ओवर हेयर। देन इट्स अ प्रोडक्शन लेवल थिंग प्रॉब्लम। वो फिर ये नहीं कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। सो आई थिंक इनोवेशंस की बहुत बड़ा स्कोप है, और शायद पाकिस्तान में बाकियों से ज़्यादा है क्योंकि हमारे मसले बाकियों से ज़्यादा हैं। जहाँ पे मसले ज़्यादा होते हैं वहाँ पे सोल्यूशन ज़्यादा चाहिए होते हैं, सोल्यूशंस के लिए इस तरह की इनोवेशन चाहिए होती हैं। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं की, बहुत सी बाकियों ने सॉल्व की हुई हैं, हमने थोड़ा सा उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके ही लेके आना है। सो आई थिंक सिटिंग इन लाहौर में बार बार फूड की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि खाबा तो यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, बाकी कुछ चले या ना चले। सो इसलिए आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ जैसे ही इस लेवल पे सोचना शुरू करेंगी कि हाउ डू वी एनेबल दीज किड्स टू डू समथिंग हेयर लोकली, अप्लाई लोकली, तो उससे वो स्किल भी सीखेगा, उससे वो प्लानिंग भी सीखेगा, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी सीखेगा, और आगे किस तरह उसने स्केल करना है वो सब कुछ सीखेगा। सो एंड अगेन ऑफ कोर्स यूज AI टू हेल्प देम मेक दोज मार्केटिंग प्लान्स एंड ऑल दैट। वो सारा एक आसान हो गया और काम करना उससे तो। सो आई फील ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड आई सी कि ये कुछ ना कुछ आपको और नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स माई टेक ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड मैं